صلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین گرامی قدر، ذکر ہو رہا ہے اس خوش قسمت اور عظیم ہماری ماں کا جو ان عظیم ہستیوں میں ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام مومنین کی مائیں قرار دیا ہے۔ دنیا میں نسبی طور پر ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے، یہ رشتہ بھی مقدس ہے، لیکن جو خوش قسمت خواتین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا ازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی ساری بیویاں سارے جہان کے مومنوں کی مائیں ہیں، تو ان کا مقام ہے۔ ان میں ہم ذکر کر رہے ہیں ہماری سب سے پہلی امی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا۔ اس امت میں ایک مرد ہے اور ایک عورت جن کو اکبر اور کبریٰ کا اعزاز ملا ہے۔ اس امت میں صدیق اکبر ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ، اور صدیقۃ الکبریٰ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں رضی اللہ عنہا۔ عام طور پہ ہم صدیق اکبر کو تو اس حوالے سے جانتے ہیں، الصدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا تعارف ہے، ان کو نہیں جانتے، اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی مصدقہ ہیں۔ اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب سب نے میرا انکار کیا تو خدیجہ نے اقرار کیا۔ جب سب نہیں مان رہے تھے تو جن خوش قسمت لوگوں نے مانا ہے ان میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سر فہرست ہے۔ اور پھر سب سے پہلے جس خاتون نے، بلکہ ساری انسانیت میں سے سب سے پہلے جس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، وہ بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے۔ جب غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی تو بالکل جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور اجنبیت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طبی طور پر ایک خوف طاری تھا۔ آپ گھر تشریف لائے اور سیدہ سے فرمایا زملونی، مجھے کمبل دے دو، انی خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے، پتہ نہیں آج کیا ہو گیا، عجیب بات ہوئی۔ تو سیدہ نے پوچھا کیا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غار حرا میں پیش آنے والا واقعہ بتایا، تو انہوں نے فوراً کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل القلب، اور جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور وتعین علی نوائب الحق، حق کے معاملے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور جن کا کوئی نہیں ہوتا غریبوں کے لیے آپ کماتے ہیں، وتکرم الضیف، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ ان صفات والے بندے کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یہ پہلی تسلی تھی جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دی۔ پھر ایک صاحب کے پاس لے گئی جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد تھے، وہ سابقہ کتابوں کے عالم تھے، ورقہ ان کا نام ہے۔ ان کے پاس لے گئی تو انہوں نے کہا کہ اوہو، یہ تو وہی وحی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی، آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ اور فرمایا کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا۔ وہ اتنے بوڑھے تھے کہ ان کی جو یہ ابرو تھے یہاں والے، یہ ایسے نیچے آ گئے تھے، وہ اٹھا اٹھا کے بات کرتے تھے۔
फरमाया काश कि मैं उस वक्त ज़िंदा होता जब ये मक्का वाले आपको निकाल देंगे तो मैं आपकी मदद करता। आपने फरमाया कि ये निकालेंगे, सादिक और अमीन कहने वाले। तो उन्होंने कहा कि जिसने भी ये ऐलान किया है ना, जो आपके ऊपर वही आई है, उसके साथ यही हुआ है। इलाके वाले निकाल देते, मूसा अलैहिस्सलाम को भी तो वतन छोड़ना पड़ा था, तो आपको भी ये मक्का छोड़ना होगा। तो ये तसल्ली का सामान सारा सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने किया। फिर मक्की दौर में जो 10 साल वो रही हुजूर के साथ, ऐलान नबूवत के बाद वो 10 साल रही। उनका वैसे कुल रफ़ाकत का अरसा 25 साल है, लेकिन ऐलान नबूवत के बाद वो 10 साल रही। तो अहले मक्का ने जिस कदर हुजूर को सताया, बाहर से हुजूर दुखी हो के घर तशरीफ़ लाते थे, लेकिन घर में आकर सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मुस्कुराहटें और तसल्लियाँ नबी के गम दूर कर देती थी। इंसान को सारी दुनिया दुख दे, लेकिन उसको बीवी सुख दे तो उसका दुख नहीं रहता, और सारे तरफ से बंदा खुश हो और घर में आके परेशानी हो तो उसकी ज़िंदगी अजीरन बन जाती है। तो इस खातून ने नबी अलैहिस्सलाम को इतनी जामे तसल्ली दी कि आप घर में जब तशरीफ़ लाते थे तो आपके गम काफूर हो जाया करते थे। फिर इसका ये एजाज़ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कुल औलाद है वो 7 है, 4 बेटियां और 3 बेटे। इस सारी औलाद में से 6 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 4 बेटियां और 2 बेटे हैं, ये अल्लाह ने सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा से अता फरमाए हैं। और अहले बैत का और सादात का सिलसिला ही इन्हीं से चला है। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा इनकी बेटी हैं, और उन्हीं से सादात जहान में चलते हैं। गोया जहान में जितने सैयद हैं, जहाँ वो हुजूर की निशानी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा की भी निशानी है। ये इनका ये एजाज़ रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ एक बेटा हज़रत इब्राहीम मारिया क़िब्तिया से हुआ है, बाकी सारी औलाद सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा से अल्लाह ने अता फरमाई। इनका ये एजाज़ रहा। और फ़िक्र की बुलंदी और जहानत कमाल की थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इब्तिदाए वही में जो है वो खौफ सवार रहता था कि पता नहीं क्या है ये। तो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जहानत और फ़िक्र की बुलंदी और समझ देख, उन्होंने कहा कि जब अब वो आए ना तो मुझे बताना। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, आपने फरमाया खदीजा आ गए हैं। तो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने यूँ किया कि हुजूर को जल्दी जल्दी अपनी गोद में ले लिया और सर के बाल खोल दिए और फरमाया, पूछा कि अब है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो तो चला गया। फरमाया आपको मुबारक हो, वो फरिश्ता है। क्यों? फरमाया अगर ये शैतान होता माअज़ल्लाह या कोई जिन होता तो वो तो इस मंजर को एंजॉय करता, क्योंकि उनकी फितरत में तो शैतानियत और शरारत और पलीती है। ये जब मैंने बाल खोले वो चला गया तो लगता है कि वो तो फरिश्ता है कि उसने शर्म व हया की है। ये उनकी फ़िक्र की बुलंदी है, समझ देखें कितनी है। वो जानती थी कि फरिश्ते हया करते हैं और ये पाकीज़गी उनमें है, और पलीती और बेहयाई और फहाशी ये जिन्नात में है, फरिश्तों में नहीं। तो नबी अलैहिस्सलाम को इस तरह करके भी उन्होंने तसल्ली दी। और फिर शाब अबी तालिब, जिनमें मक्का वालों ने, ये अबू तालिब की एक घाटी थी, पहाड़ियों के दरमियान छोटी सी जगह थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की। यहाँ पर मक्का वालों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके बच्चों को, बच्चियों को, और जो लोग आपका कलमा पढ़ते थे रिश्तेदार, उन सबको यहाँ पे 3 साल के लिए कैद कर दिया था, और खाना पीना पूरा सोशल बाइकाट किया था, और ये मुआहदा लिखकर बैतुल्ला में लटकाया था कि कोई इनसे बात न करे, कोई इनसे ताउन न करे। और 3 साल तक ये इस तरह उस घाटी में बंद रहे। सीरत की किताबों में लिखा है कि छोटे छोटे बच्चे रातों को चीखते तो दिल दहल जाते थे कि उनको खाने पीने को मिलता ही कुछ नहीं था। घास के तिनके और दरख्तों के पत्ते और ये खाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ जानिसारों ने और आपके बच्चों बच्चियों ने सब ने यूँ ज़िंदगी बसर की है। इसमें सैयदा खदीजतुल कुबरा भी साथ हैं। आप देखें वो शहजादी थी और इतनी अजीम मालदार खातून और ताजरा थी, तो नाज़ो नियाम में पली थी,
लेकिन हुजूर की खातिर उसने क्या कुर्बानी नहीं दी कि दरख्तों के पत्ते खा के ज़िंदगी बसर कर रही। और उम्र का भी वो आखिरी हिस्सा है। तो अब यहाँ उनकी सेहत गिरी है और फिर वो संभल नहीं सकी, क्योंकि उम्र का आखिरी हिस्सा था और नाज़ व नियाम में पली थी। तो मुशक्क़त जो पड़ी तो उनकी तबीयत पर गिरा गुजरी और उनकी सेहत गिरी और फिर वो बहाल न हुई। फिर जब वो मुक़ाता ख़त्म हुआ और वो बाइकाट ख़त्म हुआ तो सन 10 नबवी में, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के 10वें साल सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया। उस वक्त जनाजा के अहकाम तो थे नहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जन्नतुल मुअल्ला में दफन किया। अब इस साल, ये जो नबूवत का 10वां साल था, इस साल सैयदा खदीजतुल कुबरा का भी इंतकाल हो गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती फरमाने वाले चचा जनाब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया। तो घर में तसल्ली देने वाली भी चली गई और बाहर दिफा करने वाला भी चला गया। और इसी साल ताइफ का वाक़या भी पेश आया, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार मार के ताइफ वालों ने निकाल दिया। वो दिल खराश वाक़या भी इसी साल पेश आया। इसलिए इस साल को आप अलैहिस्सलाम फरमाते आमुल हुज़न, ये नबी के दुखों का साल है कि एक वफादार रफ़ीक़ हयात चली गई और एक गमखार और हमदर्द चचा चले गए। और यूं कि आप अलैहिस्सलाम ने आखिरी वक्त में फरमाया, मेरे चचा कलमा पढ़ लेते तो मैं क़यामत के दिन, मेरे कान में कलमा पढ़ लेते तो मैं क़यामत के दिन सिफारिश तो करता, लेकिन उसने ना पढ़ा। आप अलैहिस्सलाम आंसुओं की बरसात में उठे और अल्लाह ने जिब्राइल को भेज के कहा, इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। मेरे महबूब रोते क्यों हो, आपका काम तबलीग करना था, वो आपने कर दिया, हिदायत तो मेरे पास है। तसल्ली दी रब ने। तो ये सारे वाक़यात पेश आए जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सदमात में मुब्तला कर दिया। और ये साल नबी के दुखों का साल, अभी भी उसको सीरत की किताबों में आमुल हुज़न लिखा जाता है कि नबी के दुखों का, परेशानियों का और गमों का साल है। अब अल्लाह की तरफ से मामला देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने वाला तो दुनिया में तो बज़ाहिर कोई रिश्तेदार तो रहा नहीं, माँ बाप तो पहले नहीं, दादा भी चले गए और सरपरस्ती फरमाने वाले चचा भी चले गए, बीवी भी चली गई, तो और लोग पत्थर मार रहे हैं, राहों में कांटे बिछा रहे हैं। तो अब अल्लाह ने 11वें साल, नबूवत के 11वें साल, अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को मेराज के सफ़र में अर्श पे बुलाया और दुनिया को बताया कि दुनिया वाले परेशान हों, उन्हें सब तसल्ली देते हैं, कोई माँ, बहन, भाई, फूफी, सारे ये दुनिया वालों को जब ये परेशान हो, इनको सब तसल्ली देते हैं, ये मेरे नबी हैं, ये परेशान हूँ, इन्हें खुद रब तसल्ली देता है। अल्लाह ने अर्श पे बुलाया, सफ़र करवाया, सैर करवाई, कहते हैं ना आब व हवा तब्दील करवाओ, ज़रा बाहर ले जाओ और अच्छी अच्छी जगह दिखाओ ताकि उनका गम ज़रा हल्का हो। तो दुनिया वाले दुनिया की जगह देखते हैं, अल्लाह के नबी को रब ने अर्श पे बुलाया, जन्नत को सजाकर जन्नत दिखाई, फिर अर्श पे बुलाकर अपने आप से हम कलामी का शर्फ बख्शा और दीदार करवाया और फरमाया, मेरे महबूब तुम इधर आओ ताकि आपके गम हल्के हो जाएं। और ताइफ वालों ने मार मार के मिटाने की, गिराने की कोशिश की, अल्लाह ने अर्श पे बुलाकर उनको भी मैसेज दिया कि जिन्हें तुम गिराना चाहते हो उन्हें हम इतना बुलंद कर रहे हैं कि क़यामत तक कोई उनकी बुलंदी की मिसाल पेश नहीं कर सके। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ा, शिआर, रफ़ीक़ हयात सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा, इनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं इस्लाम की खिदमत में। इसलिए सलामुल्लाहि अलैहा, अल्लाह उन पर दुरूद व सलाम नाजिल फरमाए। उन्होंने बड़ी मेहनत की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपका साथ देकर सदमात, दुख उठाए, परेशानियाँ उठाईं और इसी मईयत में और इसी रफ़ाकत में उन्होंने अपनी जान भी दी कि शब अबी तालिब में उनकी सेहत मुतासिर हुई थी और वो बहाल नहीं हुई। तो एक दर्जे से उनको शहादत का रुतबा भी मिल गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर कुर्बानियाँ दी और वही कुर्बानी उनकी मौत का ज़रिया बनी है।
ان کی وفات ہے سن 10 نبوی میں رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اس وقت اگرچہ روزے نہیں تھے اور نمازیں بھی نہیں تھیں، یہ 5 نمازیں فرض، یہ تو معراج میں تحفہ ملا ہے اور روزے مدینہ منورہ میں فرض ہوئے ہیں، لیکن یہ مہینہ رمضان شریف کا ہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو دفن فرمایا، اور آپ علیہ السلام زندگی بھر سیدہ کو یاد کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کے گھر میں گوشت پکتا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کے ہاں بھیجتے تھے، اور ایک دفعہ ان کی بہن حالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی تو بہنوں کی آوازیں مشابہ ہوتی ہیں ایک دوسرے کی، انہیں دروازے پہ دستک دی، آپ نے فرمایا کون؟ اس نے کہا حالہ، تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ او ہو، یہ تو خدیجہ کی یاد دلاتی ہے، اس کی تو آواز اس جیسی ہے۔ یہ بیویوں سے حسن سلوک اور محبت اور معاشرت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ تو بہرحال اس حوالے سے میں نے یہ ذکر کیا تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہماری ماں نے، اور ہماری سب سے پہلی ماں نے کیا کیا قربانیاں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی سفر میں اور آپ کی معاشرت میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف سے انہیں بہت جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے درجات کو پہلے سے زیادہ بلند فرمائے۔ الحمدللہ۔